ہیں, پوری فیملی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ کرے یار کوئی سسٹم بن منجے, بہت پریشان ہو گئے. چلو آج احمد پتہ لگتا نہ تیرا بھی بھائی تم کتنے پانی میں تھے. نبی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی مجھے نکال سکتے ہو. اگر مجھے پتا ہوتا کہ گورنمنٹ اتنی نااہل ہے تو خدا کی قسم میں خود کچھ کر لیتا. 25,000 سے انہوں نے کمرہ دیا ہے. آکسیجن کی کمی ہے. رات کو 2 فالنگ کا ایک دکان ہے, 50,000 روپیہ ایک کمرے کا 50,000 روپے مانگ رہے تھے. یہاں کو انتظامیہ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آیا. یہاں کے لوگ ان کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. مری میں برفانی طوفان 22 زندگیاں نکل گیا. مری آفت زدہ قرار, ایمرجنسی نافذ, گاڑیاں دھس گئیں. حکومتی امداد کے منتظر لوگ اپنی گاڑیوں میں دم توڑ گئے. ایک گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد, ایک اور گاڑی میں 4 دوست سوار تھے. دیگر گاڑیوں میں بھی سوار افراد کو موت نے گاڑی سے باہر نکلنے کا وقت نہیں دیا. انتظامیہ برفباری رکنے کا انتظار کرتی رہی, موت نے انتظار نہیں کیا. 30 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا. لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں, امداد کے لیے پکار رہے ہیں. کہیں انتظامیہ پہنچی, کہیں انتظار. جیکا گلی میں ریسکیو آپریشن اب تک شروع نہیں ہو سکا. نہ فیملی کا لحاظ, نہ بچوں پر ترس. ہوٹل والوں نے بھی کرائے 2500 اور 50,000 کر دیے. حکومتی بے حسی, انتظامی لاپرواہی اور ہوٹل والوں کی کاروبار کو ترجیح انسانیت کو لے ڈوبی. سیر و تفریح قومی سانحے میں بدل گئی. پورا ملک سوگوار. وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کیا کہ انتظامیہ غیر معمولی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی. دیر بعد پھر یار کری نے مہربانی کری ہے تو اس آنکھی میں کرین بھیجی نے کہ کوئی نہیں, اور انہوں کہیں 18 گھنٹے ہو گئے تقریباً سانو انتظار کرتے ہیں, بلکہ 20 ہو گئے نے. تے مزید کتنے گھنٹے اور انتظار کرنا پی سی بھائی جان. ساڑھے کو تو لگی پئی نے, ساڑھے کو تو نہ رکتی پئی. مری شاید رک گئی ہوگی. بس اللہ کرے یار کوئی سسٹم بن منجے, بہت پریشان ہو گئے. چلو آج احمد پتہ لگتا نہ تیرا بھی بھائی تم کتنے پانی میں تھے. مزہ تو ہے نا, صبح تک اسی نکل جائیے, یا کم از کم اور نہیں تو کرین شروع کر دے نا, پھر کوئی بندے نو آٹ لگ جاتی گئی یار. چلو خیر ہے, کوئی نہیں, ہو جاتی ہے. بچے تھے ان کے ساتھ, اور وہ خود بھی جو ہے نا ہارٹ کے مریض تھے, ہارٹ کے پیشنٹ تھے. سر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کیا, میں نے فواد چودھری صاحب سے کیا, میں نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے کیا. ان کے پرسنل نمبر پہ بھیجا, لیکن یہ تو ظاہری بات ہے, بڑے لوگ ہیں, جواب کہاں دیتے ہیں. مجھے ان کے الفاظ نہیں یاد, میرے ذہن سے وہ نہیں جاتے. نبی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی مجھے نکال سکتے ہو. اگر مجھے پتا ہوتا کہ گورنمنٹ اتنی نااہل ہے تو خدا کی قسم میں خود کچھ کر لیتا. اسلام آباد پولیس کے ASI نوید اقبال اور ان کے خاندان کے 7 افراد برف میں پھنسی گاڑی میں دم توڑ گئے. ASI نوید اقبال کی مدد کے لیے اپنے کزن کو کی گئی ٹیلی فون کال بھی سامنے آ گئی. نوید اقبال اپنے کزن سے کہتے رہے کہ 20 گھنٹے ہو گئے, اب وہ تھک گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. ایک بار پھر ان لوگوں کو فون کرو, کم از کم ٹرین پہنچ جائے, کام شروع کر دے تو امید بن جائے گی. لیکن نہ مشینری پہنچی, نہ امید بندھی, نہ زندگی بچی. نوید اقبال گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ سوئے, اور جب لوگوں نے پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو زندگی ختم ہو چکی تھی. نوید سے آخری بات کرنے والے ان کے کزن طیب گوندل جیو نیوز سے گفتگو میں رو پڑے. کہتے ہیں انتظامیہ کو اپنی لائیو لوکیشن بھیجی, کوئی مدد کو نہ آیا. مری شروع ہوتے ہی شدید ٹریفک جام ملا. انتظامیہ نے ٹول پلازا پر نہیں روکا. انتظامی لاپرواہی نہ ہوتی تو شاید یہ جانیں بچ جاتی. جاں بحق افراد میں ASI نوید اقبال, ان کی 3 بیٹیاں, بیٹا, بہن, بھانجی اور بھتیجا شامل ہیں.
की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त मौत की आगोश में चले गए। मौत से पहले चारों की एक साथ सेल्फी ने देखने वालों को रुला दिया। दीगर जाँ बहक अफराद की तरह ये चारों दोस्त भी बर्फबारी में फंसकर अपनी गाड़ी में महसूर होकर रह गए। इमदाद के इंतजार में न जाने कब मौत ने जकड़ लिया। दीगर अफराद ने उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला तो चारों दोस्तों को मुर्दा पाया। लाहौर के जफर और गुजरावाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। जिंदगी जीने गए थे, लाश बनकर घरों को भेजे जा रहे हैं। इलाके में कल से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये इंतजामिया की नालायकी है कि वो यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ मेरे सामने बच्ची डेथ हुई है। यहाँ डॉक्टर है, ना कोई रास्ता खोलने का इंतजाम है। सब लोग ये खड़े हैं, मेरे भाई बहने। होटल में कमरा नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है 15,000 का तो वो 20,000 का। डेड बॉडी 25 डेड बॉडी। कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई दवाई की वजह से मर रहा है, कोई छाती की वजह से। मरी में फंसे सयाह हुकूमत पर बरस पड़े। मुश्किलात में घिरे एक शख्स ने दावा किया कि अब तक 25 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। होटल वालों ने आंखें सर पर रखी हैं। जल्द से जल्द रास्ते खोले वरना सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। कल शाम से बंद रास्ते अब तक नहीं खोले जा सके। बर्फ में कई फुट धंसी गाड़ियों में लोग अब तक छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। ये लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से हुई है। लोकल इंतजामिया थी और जेली इंतजामिया थी, ये सेल्फियों तक महदूद रही। जुमराना गफलत का नतीजा है। कोलडन्ना रोड पे एक फैमिली की अमवात हुई। कल रात जब मिनिस्टर इंटीरियर ने नोटिफिकेशन जारी किया कि मरी को बंद कर दिया गया, जो लोग जो सियाह मरी की तरफ आ रहे थे उन्होंने वहां से गाड़ियां टर्न की और वो रोड पे पूरी रात मासूर होकर रह गए। इंतजामिया के एहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो खराब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे। हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे अवाम जब वज़ीर आला पंजाब को मदद के लिए पुकार रहे थे तब उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इजलास छोड़कर गए। सारह मरी के दौरान बहरान को हल करने में हुकूमती संजीदगी का पोल खुल गया। पार्टी इजलास के बाद विफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने बताया कि मीटिंग 2.5 घंटे जारी रही। पार्टी मामलात पर तफसील से बात हुई। वज़ीर आला ने खुसूसी शिरकत की। फवाद चौधरी का कहना है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजलास के शुरू में ही चले गए थे। निकल गए थे तंजीमी इजलास के शुरू में उनका वो चूंकि आ गया था पीएम साहब की इंस्ट्रक्शन आ गई। मरी में रात से बिजली की फराहमी बंद। मरी में बंद रास्ते खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंतजामी मशीनरी मुतहर्रिक। गलियात में बर्फानी तूफान के बायस तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मरी के रास्ते में फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गलियात में 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। होटल मालिकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को आउट न करने की हिदायत। मरी में हालिया स्पेल में अभी तक तकरीबन 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेखबरी या नाअहली। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। शदीद बर्फबारी की पेशगोई से मुताबिक 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी को मरी, गलियात, कागान, स्वात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की थी। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत भी अलर्ट में शामिल थी। मरी में एफडब्ल्यूओ के जवान मशीनरी की मदद से रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक फौज के जवान भी बर्फ में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA के मुताबिक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा।
बजे यहाँ पे खड़े हैं, आगे नहीं जाने दिया जा रहा हमें, रस्ते बंद हैं। रात इधर आए थे तब बर्फबारी हो रही थी, तो अब यानी कि अंदर नहीं जा सकते। हमारी कोशिश है कि हम चले जाएं, इतनी दूर से सफर कर गए हैं लाहौर से। मरी में हंगामी सूरत हाल के बावजूद मंशरों की मरी जाने की जिद, आगाही ऐलानात के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर नजर आए। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। रेंजर्स और इंतजामिया की शहरियों से वापस जाने और ताउन करने की अपील। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं। मरीम नवाज सालेह मरी पर हुकूमत पर फट पड़ी, कहती है ये अमवात बर्बारी से नहीं हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये मुर्दा जमीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिश में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी, पेशगी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मरी में अफसोसनाक सानह पर पूरा मुल्क शोकबार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सयाहत के फरोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। 48 घंटों में लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो संभालना मुश्किल होता है। एक हफ्ते से इंतजामिया कह रही थी कि गाड़ियां लेकर मरी न आए। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले कि मरी को कल शाम 5 बजे बंद कर दिया था, काश जल्दी बंद कर देते। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए मजीद एतराफ किया कि केपी वाला रास्ता न बंद करना भी गलती थी। मौसम बेहतर होते ही मरी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि 2 से 3 फुट बर्फबारी की तवक्को थी, 7 से 10 फुट बर्फ पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों का सयाहती मकामात का रुख करना सानह मरी का बायस बना। इमरान खान का मरी में बर्फबारी से अमवात पर समाजी वेबसाइट पर बयान में इजहार अफसोस। कहा जिले इंतजामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नहीं थी, तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की सानह मरी पर वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वालों को ही मोरद इल्जाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफा दें। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने वज़ीर आज़म को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि सयाहों के मरी पहुंचने पर तुम्हारा कोई कमाल नहीं था, लेकिन तुम भंगे डालते रहे। तुम्हारी गफलत, नालायकी और बेहिसी से खुशियों की तलाश में निकले लोग मौत की वादी में जा पहुंचे। उन्होंने अपने बयान में सवाल भी किया कि है कोई जो इक़्तिदार के महलों पर साजिशों से काबिज कातिलों पर गिरफ्त करे। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद वफाकी हुकूमत मरी में लाखों अफराद की आमद को मईशत की मजबूती का बयानिया बनाकर पेश करती रही। तहरीक इंसाफ में एक आदमी उठ खड़ा हुआ। हाल ही में पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहने वाले अहमद जवाद ने फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया कि आपने तो 2 दिन पहले मईशत की मजबूती का जिक्र कर दिया था और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया था। तो कल रात जो कीमती जानें चली गई, क्या उन्हें भी मुआशी आशारियों में शामिल कर लें? पार्टी का बयानिया अपने जमीर से ज्यादा कीमती नहीं होता, क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को बयान दिया था कि मरी में 1 लाख गाड़ियों की आमद आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे का नतीजा है। स्वात, चित्राल, मालाकन, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत।
असोर में 6 रोज से जारी बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। पीरवाला में शदीद बर्फबारी के बायस मकान की छत गिरने से 4 बच्चे और खातून जाँ बहक। चमन में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। गुजरावाला में बारिश के बायस छत गिरने से 2 बच्चियां और गुजरात में छत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि थर के अवाम को बुनियादी सहूलियात न देना जुर्म है। ये बराह रास्त इंसानी हुकूक पर हमला है। बहुत अफसोस होता है कि थर के अवाम को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। थर के अवाम को महरूम रखा जाएगा तो मुल्क की खिदमत नहीं होगी। मिठी इस्तिकबाल में वकला से खिताब के दौरान कहा कि थर के लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। अपनी मौजूदगी तक जो काम करना होगा वो करते रहेंगे। जब भी जरूरत हो चेयरमैन नैब पार्लियामेंट में पेश होते रहेंगे। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली को नया खत भेज दिया। चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट पेशी से मुतालिक पहले खत से दस्तबरदार। नैब ने नए खत में मौके पर लाया है कि खत सेक्रेटरी असेंबली को लिखा गया था, न कि वज़ीर आज़म इमरान खान को। आपके दफ्तर को खत लेकर आगाह किया गया कि चेयरमैन नैब के खानदान का एक फर्द शदीद तिब्बी सूरत हाल से दोचार है। पार्लियामेंट के एहतराम के तौर पर डीजी नैब को पीएसी में पेश होकर सूरत हाल से आगाह करने का कहा गया। पहले लिखे गए खत के हवाले में वज़ीर आज़म का जिक्र नादानिस्ता और हादसाती है। कराची में ओमिक्रॉन बेकाबू। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज शरह 10.25% थी। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। तादाद 270 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता रोज 46,533 टेस्ट किए गए। 1,345 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने सानह मरी की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर इंतजामिया की जानिब से कोई गफलत सामने आई तो तादीबी कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर रब्बानी ने मरी के वाक़े को कौमी साने हक करार दे दिया। हुकूमत से सोग के ऐलान का मुतालबा कर दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सूबाई और जिले इंतजामिया की गफलत का तयन किया जाए। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोलें। गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ करें। पीटीवी और एआरवाई की मुतराज़े और मुबैना गैर कानूनी शराकत दारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंजूर नजर निजी इदारे एआरवाई को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। एआरवाई को जब आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शराकतदार बनाया गया तब उसका कोई स्पोर्ट्स चैनल था ही नहीं। अगस्त 2021 के आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के टेंडर में पीएसएल का जिक्र नहीं था। पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइल्म रखा। 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली, फिर खामोशी से ए स्पोर्ट्स को शराकतदार बना लिया। अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर एआरवाई को नवाजने की कोशिश की, उसके तहत पीटीवी का मुआहदा ग्रुप एम और एआरवाई के कंसोर्शियम से था, मगर पीएसएल के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ एआरवाई से कंसोर्शियम किया गया। अवामी टैक्स पर चलने वाले पीटीवी ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात अब तक पेश नहीं की। सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे पीटीवी और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।